السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی 58ویں سالگرہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور 58ویں سالگرہ پر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس خصوصی پروگرام میں۔ میں ہوں رضوان علی اور میں ہوں مدیحہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا مقصد ایک ایسی نشست اور ایک ایسا پروگرام آپ کے لیے پیش کرنا ہے جس میں ہم آپ تک وہ تمام ایفرٹس پہنچائیں جس کی وجہ سے آپ سموتھ نشریات دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہماری سینئر مینجمنٹ، جن کی ہدایات کی روشنی میں اور جن کی تکنیکی معاونت کو لے کے ہم آپ کے سامنے ایک سموتھ ٹرانسمیشن پیش کرتے ہیں جس سے آپ لوگ دیکھتے ہیں اور خوب سراہتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں برینز بیہائنڈ دی اسکرین۔ اور ان برینز کا جو گائیڈ لائنز ہم تک پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل سپورٹ ملتی ہے، اسی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچتی ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں جہاں باقی پاکستان ٹیلی ویژن کی 58ویں سالگرہ پر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مختلف رنگا رنگ پروگرامز دیکھ رہے ہیں، آپ محظوظ ہو رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہیں آپ، تو اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے کون کون سے ایسے کلیدی کردار ہیں اور کون کون سی ایسی اہم نشستیں ہیں جن پر لوگ موجود ہوتے ہیں، جیسے مدیحہ نے کہا برینز بیہائنڈ دا اسکرین، اور ان برینز سے آنے والی ہدایات، ان کی ٹیکنیکل سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے وہ تمام گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ لوگوں کو بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے جاننے کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں بیہائنڈ دا کیمرہ کون لوگ ہیں جو موجود ہوتے ہیں، اور آج ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گی ڈائریکٹر نیوز مرزا راشد بیگ صاحب سے، جن کا وسیع تجربہ ہے اور جو اب ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے نیوز ڈپارٹمنٹ کو، اور کرنٹ افیئرز کے ڈائریکٹر اور ساتھ ساتھ پی ٹی وی ورلڈ کے انچارج اون عباس صاحب صاحب۔ الیکٹرانک میڈیا میں آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف نور صاحب، جو کہ ڈائریکٹر انجینئرنگ ہیں۔ ان کی تکنیکی معاونت کی بدولت آپ لوگ دیکھتے ہیں لائیو ٹرانسمیشنز، بریکنگ نیوز، کرنٹ افیئر کے پروگرامز اور بہت کچھ بالکل سموتھ اور فلالیسلی۔ اور پروگرام کا اگر ذکر ہو تو پھر پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک خاصہ رہا ہے، وہ ڈرامہ پروڈکشن ہو، وہ تفریحی پروگرامز ہوں، موسیقی کے پروگرام ہو، تو پروگرام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ یہ خاصہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک باقاعدہ شعبے کے طور پر پروگرام کو ڈیل کرتا ہے، اور ڈائریکٹر پروگرامز اکبر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو ہم اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو چونکہ مدیحہ، سب سے زیادہ ضروری، سب سے امپورٹنٹ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس شعبے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ کوارڈینیشن ضروری ہے، لیکن سب ڈپارٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب کی میوچل کوارڈینیشن اور کوپریشن کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز آج اس مقام پر موجود ہے۔ اور یہی کرسپ ہے کہ سب سے پہلے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نیوز کیا ہے، تو ہم بات کریں گے ڈائریکٹر نیوز مرزا راشد بیگ صاحب۔ راشد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کو بہت بہت مبارک ہو 58ویں سالگرہ۔ سب پی ٹی وی کے ناظرین کو بھی اس چیز کی مبارکباد ہونی چاہیے کہ کیونکہ وہ شروع سے لے کے آج تک پی ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیا بھی اس میں ایڈ ہو گیا ہے، لیکن پی ٹی وی اپنا مقام بلند رکھتا ہے۔ جی سر، تو اسی لیے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے جوائن کیا تب سے اب تک کے سفر کی کچھ اچھی یادیں، اچھی باتیں ہم سے شیئر کریں۔ دیکھیں، پہلے تو جب میں نے پی ٹی وی جوائن کیا، اس کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پی ٹی وی میں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا میں جاؤں گا تو بزنس ایڈمنسٹریشن کو جوائن کروں گا، لیکن بعد میں ایڈمیشن ہی میس کمیونیکیشن میں ہوا۔ وہاں سے میس کمیونیکیشن کرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد میں نے 89 میں پی ٹی وی جوائن کیا۔ جب پی ٹی وی جوائن کیا تو پی ٹی وی میں ہمارے تو فلم سیکشن ہوتا تھا، اس وقت سپول پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، اس کے جو ہے فریمز کاٹنے، ان کو جوائنٹ کرنا، چلانا، وہ اکثر جو ہے ہماری فلم آن ایئر ٹوٹ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی میں یعنی کہ جدت آتی گئی، اور پھر اس کے بعد ٹیپس آتی گئی، پھر ہم وہ ٹیپس پہ ایڈیٹنگ کرنی، اور ابھی تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے سب کچھ، جی چھوٹے سے کارڈ کے اوپر وہ پورے کا پورا وہ پروگرام آ جاتا ہے، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی ہے، چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور رضوان، آپ بڑا انٹرسٹنگ ہے، 89 میں جوائن کیا مرزا راشد بیگ صاحب نے، اور تب کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میڈیا میں اتنا بوم آئے گا، نیوز اور کرنٹ افیئرز یا پروگرامز سب الگ الگ شعبے بن جائیں گے۔ بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اگر بات کریں تو پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ ہے پورے پاکستان میں، ہمارے ہر شعبے کے لیے الگ سے چینلز ہیں۔ آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی بات کر لیں، پاکستان ٹیلی ویژن ہوم باقاعدہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی گلوبل ہے، پی ٹی وی پارلیمنٹ
एंटरटेनमेंट के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा है पाकिस्तान टेलीविजन अपने नाजरीन के लिए। फिर PTV स्पोर्ट्स, एक ऐसा चैनल पाकिस्तान टेलीविजन ने जिसका आगाज़ किया पाकिस्तान में खेलों का बहुत ज़्यादा फ़रोग, और फिर हमारे इंटरनेशनल नाजरीन के लिए PTV वर्ल्ड का अगर हम जिक्र ना करें तो ये ज़्यादती होगी। PTV वर्ल्ड के इंचार्ज हैं और साथ साथ करंट अफेयर्स के इंचार्ज हैं ओन अब्बास शाही साहब। ओन साहब, बतौर इंचार्ज PTV वर्ल्ड आपने जिम्मेदारियाँ संभाली, इससे कबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने खिदमत सर अंजाम दी। करंट अफेयर्स का शोबा कितना मुश्किल है ये शोबा, और इसमें टॉपिक्स को डिसाइड करना, जिन मौज़ूआत पर लोग सुनना चाहते हैं, आरा सुनना चाहते हैं, तज्जिया सुनना चाहते हैं, कितना मुश्किल है इस चीज़ को हेड करना? रिजवान, बहुत शुक्रिया। मदीहा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इनवाइट करने का और बताने का लोगों को कि ये लोग हैं जो कुछ वो देख रहे हैं उसके पीछे ये 4 लोग हैं। अपनी जिम्मेदारी सारी हम पे डालने का भी बहुत शुक्रिया उन सारों का। डेफिनेटली बहुत अहम सवाल, और सबसे पहले नाजरीन को जो सालगिरह है PTV की उसकी मुबारक हो। और PTV बेसिकली पायनियर है बहुत सारी चीज़ों में, बल्कि इस रीजन में हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, चाहे वो करंट अफेयर्स की बात हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग की बात हो, इवन नशरियात इस रीजन में सबसे पहले PTV ने शुरू की। आपकी जो सबसे पहले रंगीन नशरियात थी वो PTV ने शुरू की। फिर लाइव ट्रांसमिशन इस रीजन में सबसे पहले मैचेस दिखाना जो है वो PTV ने शुरू किए। इसी तरह करंट अफेयर्स, और अभी अगर आप देखें पाकिस्तान के जो जर्नलिस्टिक एरिना है तो इसमें जितने बड़े नाम हैं, ख़ास तौर पर करंट अफेयर्स के जो एंकर्स हैं, जो आपके दूसरे लोग हैं, उन सारे वन वे अदर वे PTV की छलनी से हो के गुजरे हैं। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया हो रही थी मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उससे पहले सिर्फ PTV था जिसके पास ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते थे। मॉर्निंग शो हमें अभी भी याद है मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का, किस तरह वो। इसके अलावा आपके इलेक्शन ट्रांसमिशन जो हैं बाकायदा एक एहतमाम के साथ, जो इलेक्शन तो इट सिर्फ एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, लेकिन जो PTV की ट्रांसमिशन है इलेक्शन की वो उससे भी बड़ा एक इवेंट होता था। और उसमें जिस तरह का प्रोग्रामिंग और वो सारे इवेंट्स और इस तरह उसको सारा इकट्ठा किया जाता, और सबसे पहले ग्राफिक्स जिस तरह उन्होंने यूज़ किया, तो ये तो है हमारी एक लेगेसी जिसको लेके आगे चलना, और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो जिस तरह आपने कहा टॉपिक्स को किस तरह डिसाइड करना होता है, जिस तरह आपने कहा राशिद बेग साहब बैठे हैं, न्यूज़ एजेंडा डायरेक्टर न्यूज़ ने उसको डिफ़ाइन करना होता है, और फिर हमने वहाँ से चीज़ें ड्राइव करके उसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखें, न्यूज़ एजेंडे से हम ड्राइव करते हैं और न्यूज़ की मेन बुलेटिन हैं 6, हमने जो है तकरीबन को 10 घंटे जो है वो उस पर फिर उसके मुख्तलिफ एंगल्स जो है उनको दिखाना था। तो इसी तरह जिस तरह आपने शुरू में कहा कि इट्स अ टीम वर्क, कि ये न्यूज़ देते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं, उनसे उसको कवर किया जाए। एक्सपर्ट्स जो है उसमें बुलाए जाते हैं, न्यूज़ का क्रक्स जो है वो निकले, और फिर उसको फिर हम एक्सपैंड करेंगे। इन्होंने चीज़ों को जो है वो करना होता है कॉम्पैक्ट, हमने उसको एक्सपैंड करना है। करंट अफेयर्स का जो एक एक्सपेंशन की बात करें ऑन साई साहब, इसमें मुझे बड़े इंटरेस्टिंग पहलू ये होता है कि बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी हैं, और वहाँ पर चूंकि रेटिंग मैटर करती है, साथ साथ कमर्शलाइजेशन हो चुका है, तो वहाँ पर तो प्रोग्राम्स में लड़ाई झगड़ा दिखाना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ समझा जाता है। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का खासा है कि यहाँ पर भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स चलते हैं, पर प्राइवेट से बिल्कुल हट के, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? बिल्कुल, और मुझे क्योंकि मैं वैसे भी नौजवान हूँ इन सारों में से, और अदरवाइज भी मुझे भी बहुत कम अरसा हुआ PTV को ज्वाइन किए हुए, 1.5 साल का, और मेरा पहला सारा प्राइवेट सेक्टर का तजर्बा था। एक जो सबसे अच्छी चीज़ है PTV के प्रोग्रामिंग में, न्यूज़ में, आपके दूसरे सारे में, किसमें हिजान नहीं है। हमारी सबसे जो हमारा वो तुरा इम्तियाज़ है, ये जो फीदर इन द कैप है, कि हम कोई चीज़ जब तक कंफर्म ना हो उस वक्त तक हम उस पर वो ना न्यूज़ देते हैं, ना हम उस पर कमेंट जो है वो करते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ है कि जो सेंसेशनलाइजेशन है उसको उसमें से निकालना, और यही PTV का पहले दिन से लेकर आज तक जो है, यही जो है वो एक तरह के आप कह लें कि डिस्टिंक्शन है कि इतने चैलेंजेस हैं, इतने बड़े चैनल आए, और अगर सिर्फ पाकिस्तान के नहीं पूरे रीजन में आप देखें इस तरह की आवाज़ें आती हैं, इस तरह का शोर उठता है, इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं कि आपका प्राइवेट चैनल चाहे वो शुरू में कभी कभी दिल करता था कि हो, लेकिन ये जो PTV का मिजाज है, ये जो PTV की अपनी एक लेगेसी है, दैट स्टॉप्स यू, और वो ही बेसिकली इसकी खूबसूरती है। मैं आपको बताता हूँ, खुद मैं एक प्रोग्राम कर रहा था एक प्राइवेट चैनल में एंकर के तौर पे, तो मेरे 2 गेस्ट जो है उनकी कोई लड़ाई शुरू हो गई, तो मेरे प्रोड्यूसर को मैंने कहा कि ब्रेक लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं सर इसको आज अभी तो चलने दें। तो ये जो है यहाँ पे जो बेसिक जो हमारा है कि एक तो हम देखें, हम
स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट रन चैनल है बेसिकली। तो फिर हमारी जिम्मेदारियां भी हैं कि हमने हर तरह से कोशिश ये करनी है कि कोई इस तरह की चीज़ ना जाए जिसकी वजह से स्टेट पे या गवर्नमेंट पे या सोसाइटी पे कोई जो है वो इशू हो। जी बिल्कुल, इसलिए फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ टेरेस्ट्रियल चैनल है जो दूर दराज इलाकों में देखा जाता है सैटेलाइट के थ्रू, और हमारी जिम्मेदारी इसलिए बहुत बढ़ जाती है कि हमें सेंसेशनलिज्म को कंट्रोल करना होता है, जैसे सर ने कहा कि हिजानी कैफियत को, क्योंकि बहुत जो हमारी व्यूअरशिप है उसके अकॉर्डिंगली हमें चीज़ों को लेकर चलना होता है। इस हवाले से मैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग जो आरिफ नूर साहब हैं उनसे पूछना चाहूँगी कि सर आप बताइए कि PTV अपनी टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? जी, PTV टेरेस्ट्रियल इस वक्त जो है हमारी एनालॉग ट्रांसमिशन चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द जो दुनिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन के हवाले से जिस तरह ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी ने नई आई है, हम भी उसको इंशाल्लाह ऑप्ट करेंगे। इस वक्त डिजिटल ट्रांसमिशन हमारी मरी से टेस्ट ट्रांसमिशन जारी है, सिस्टम को एवेल्यूएट किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांसमिशन का फ़ायदा ये होगा कि ये जो नाज़रीन अक्सर हमें ख़ास आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पर कंप्लेंट्स आती हैं, फ़ोन्स आते हैं कि जी आप PTV स्पोर्ट्स को भी लाइक PTV होम और PTV न्यूज़ की तरह टेरेस्ट्रियली दिखाया जाए। इस वक्त हमारे पास थ्रू आउट द कंट्री PTV होम और PTV न्यूज़ के टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन हम दिखाते हैं, लेकिन जब स्पोर्ट्स का इवेंट आता है तो फिर हम किसी एक को रोक कर स्पोर्ट्स के इवेंट दिखाते हैं। विद इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी जब हम इसको ऑप्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम PTV के 9 चैनल्स को एक ही ट्रांसमिशन के ज़रिए रिले करेंगे। इट वुड बी अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। वी विल ऑप्ट द डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन। इस वक्त वो सिस्टम अंडर एवेल्यूएशन है, जो ही इसका फाइनल होगा और सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो हम फेज़ वाइज मैनर में इंशाल्लाह ताला सारे मुल्क में इसको डिजिटल ट्रांसमीटर्स लगा देंगे। आरिफ साहब, चूँकि जैसे राशिद साहब ने जिक्र किया था कि 1989 में उन्होंने ज्वाइन किया PTV, और यकीनन आपका सफ़र भी एक तवील सफ़र है पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ। जो ट्रांजिशन है टेक्नोलॉजी का, हम देख रहे हैं TV आया एनालॉग, और फिर उसके बाद डिजिटल, फिर तार वाला टेलीफोन आया, फिर उसके बाद वायरलेस आया, और अब मोबाइल आ गया। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी एवोल्यूशन हुआ है, TV अपनी इम्पोर्टेंस को कैसे मेंटेन रख रहा है? और आपका ख़ासतौर पर जो शोबा है टेक्निकल, इसकी अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, साथ साथ नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमआहंग होना और सारी अपनी टीम को करना, फिर पूरे TV को उस पर शिफ्ट करना, ये कितना बड़ा चैलेंज है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, काफ़ी जिम्मेदारी है इंजीनियरिंग डिवीज़न की PTV को अपग्रेड करने में, बल्कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में हम ही जिम्मेवार हैं इसके। शुरू में आपने देखा होगा, मैं भी इट्स अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, मैं भी 1989 में टेलीविज़न में आया था, तो आपको याद होगा 25-30 साल पहले, 35 साल पहले हमारी ट्रांसमिशन सिर्फ 5 बजे शुरू होती थी और रात को 11 साढ़े 11 बजे फरमान लाई के साथ ख़त्म हो जाती। अभी इसका मौफिर जिक्र भी कर रहे थे जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा कि हम PTV होम से बढ़ते बढ़ते आज माशाल्लाह PTV के 9 चैनल्स हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द अपग्रेडेशन, और हमने अपने आप को अपग्रेड किया, हम एनालॉग से निकले। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा PTV न्यूज़ एक HD चैनल है, हमारा PTV स्पोर्ट्स HD चैनल है, और इवन अगर आप HD चैनल्स के दरमियान भी कंपेयर करें तो आपको PTV न्यूज़ की यू विल फाइंड अ मच बेटर पिक्चर क्वालिटी अमंग्स द HD चैनल्स जो कि न्यूज़ रिले करते हैं। और अब हम कुछ बात करेंगे प्रोग्रामिंग की, और ड्रामा हो, मौसीकी के प्रोग्राम हो, जैसे भी आरिफ साहब जिक्र कर रहे थे, राशिद साहब ने जिक्र किया कि वो फरमान इलाही चलता था, तिजारती खबरें होती थी, शाम 5 बजे मुंतज़िर होते थे, या फिर अर्ली मॉर्निंग ओन साहब ने कहा कि सुबह पाकिस्तान और गुड मॉर्निंग का आगाज़ होता था बाकायदा पाकिस्तान टेलीविज़न से। तो उसमें जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाते थे उनमें दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए नई गुफ्तगू, नए मौज़ूआत और नए सेगमेंट्स और प्रोग्रामिंग में जान कैसे पैदा होती थी, ये प्रोग्रामिंग के डायरेक्टर से पूछेंगे हम एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान रज़ा है। 58वीं सालगिरह 58 एनिवर्सरी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। मैं
हूं सजाद अली और मैं आ रहा हूं पीटीवी पे। पीटीवी की सालगिरह के मौके पे 26 नवंबर 2022 को आप लोगों के फेवरेट गाने लेके, सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बहरोज सब्जवारी और आज पीटीवी की 98वीं यानी 58th बर्थडे है, एनिवर्सरी है। और जैसे कि 58 साल पीटीवी को हो गए और 56 साल मुझे पीटीवी से मुंसलिक हुए हो गए, और दुआओं की दरख्वास्त है कि पाकिस्तान इसी तरह फले फूले और पीटीवी भी इसी तरह फले फूले। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। आप सब देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58वीं सालगिरह के हवाले से हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन करने वाले मुख्तलिफ शोबा के जितने भी हमारे हेड्स हैं वो अपने अपनी एक्सपीरियंस, अपने अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से आगाह कर रहे थे। और ड्यूरिंग द ब्रेक वी आर ऑनर्ड कि हमें ज्वाइन किया है चेयरपर्सन पीटीवी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहतरमा शाहिरा शाह साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम। और एमडी पीटीवी सुहेल अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नाज़रीन, हमारी इस ट्रांसमिशन में आज वाक़तन 4 चांद लग गए हैं और हमारा एक तरह से जो सेट है मदिया वो मुकम्मल हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको अपने बीच में पाके। और जैसे हमने बात की थी प्रोग्राम के शुरू में ब्रेन बिहाइंड द स्क्रीन्स की, तो उसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट लोग शामिल हो चुके हैं और आप लोगों को अभी बहुत दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। तो मैम, आपसे मेरा पहले ये क्वेश्चन है, मैम जब आपने बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और चेयरपर्सन पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी जिम्मेदारियां संभाली, तो सबसे अहम चैलेंजेस क्या पेश थे, क्या दरकार थे आपको, और आपने कैसे उन्हें हैंडल किया, किस विजन के साथ आप आई थी और किस हद तक आपकी तवक्कुआत पूरी हुई हैं? लेकिन ये पीटीवी है, इसकी हमेशा से एक ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की रही है और हमारा ये मेजर इदारा है। इसके मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं बिकॉज़ आप एक ज़माने में ऑल एंड ऑल हुआ करते थे, आपको चैलेंजेस नहीं थे कोई भी दरपेश, आपको कंपटीशन कोई नहीं था फेस करना पड़ता। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज्ड है और विच इज़ गुड इन अ वे, बिकॉज़ अगर आपको चैलेंजेस मिलेंगे तो आप इम्प्रूव भी करेंगे। लेकिन उसमें फिर हमारे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सरकार के इदारे जो हैं वो सरकार के मुताबिक चलते हैं। इन लिमिटेशंस के अंदर रह के हमेशा मैंने कहा है कि पीटीवी का रोल जो है बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज़ आपको कोई फ्री हैंड नहीं मिला हुआ, आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। सो पीटीवी जो है जी, इसके फ्लरिश करने के चैलेंजेस ये हैं कि एक तो आपको ओवर द ईयर्स, अब तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे इसके चैनल्स जो हैं वो HD हो चुके हैं। आपकी एक तो टेक्निकल चैलेंजेस हैं, दूसरा थोड़ी सी प्रोग्रामिंग का मसला है। जिस तरह के पहले जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था तो बहुत सारे प्रोग्राम आप लोगों के खुद बनते थे और अब ये है कि ज़रा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है जी। और कुछ प्रोग्राम्स की नौइयत बदल गई है। लेकिन इसकी जो ओनरशिप है वो हम हमेशा रखते हैं और मेरे बेहतरीन अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। जब गाइडलाइंस की बात होती है या फिर जैसे मैडम ने कहा कि ओनरशिप और ओनरशिप के साथ जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है और जिम्मेदारी के लिए विजन का होना बहुत ज़रूरी है। मदिहा, जब तक आप फोर्स ही नहीं करते, हम दूसरों को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि क्या एक्चुअल में नाजरीन देखना चाहते हैं और उनके लिए कैसी प्रोडक्शन होनी चाहिए, आइदर वो न्यूज़ हो या फिर वो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हों। सुहेल अली खान साहब MD PTV हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम में आप भी तशरीफ़ लाए हैं। सुहेल अली खान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जैसे मैडम ने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं और हम चूँकि रियासती चैनल हैं, हम स्टेट चैनल हैं और हमारी जिम्मेदारी न सिर्फ अपने मुल्क के नाजरीन तक जो ख़बरें पहुँचाना है या फिर एंटरटेनमेंट है, उनको बाखबर करना है, उनकी तालीम और तरबियत है,
हम इंटरनेशनली भी गवर्नमेंट का माउथ पीस हैं, हम स्टेट का एक माउथ पीस हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो हमारे रियासत की जिम्मेदारियां उनको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। कितना इम्पोर्टेंट है आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, अगर हम विजन जानना चाहें हमारे नाजरीन जो कि एक्चुअल में इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, तो वो विजन क्या है जिसके ज़रिए आप इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस पुरमसरत मौके पे कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो नाजरीन जानना चाहेंगे पीटीवी न्यूज़ के हवाले से, क्योंकि ये एक बहुत ही तारीख साज दिन है, स्पेशली मेरे लिए, और एक सादत भी है कि इस वक्त मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न और ख़ासकर न्यूज़ और करंट अफेयर्स जब ये बना और बनने के बाद मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रा, तो मेरा मुसलसल किसी ना किसी हवाले से इससे रब्ता रहा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ग्रुप में उन असाइनमेंट्स में हर इंफॉर्मेशन ग्रुप का के जो अफसर होता है उसका ताल्लुक यहाँ होता है। तो इसके चैलेंजेस का बखूबी उस वक्त भी अंदाज़ा था, और ये चैलेंजेस वक्त के साथ, जिस तरह मैडम सेक्रेटरी ने बिल्कुल सही कहा कि बढ़ गए कंपटीशन के साथ लेकिन उस चैलेंजेस के साथ हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और उसके जो वसाइल और उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, और इन लोगों की एक्सपर्टीज़ से और इनकी मुआवनत से वो प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई है, और उनके जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के जो पैटर्न्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान टेलीविज़न ही को फॉलो किया। पाकिस्तान टेलीविज़न के न्यूज़ सेक्शन की और ज़िम्मेदारी है, जिसमें एक चीज़ ये है कि अक्सर वो झगड़ा रहता था कि जी बाकी सब चैनल्स पे, प्राइवेट चैनल में ख़बर चल गई और अभी तक हम ये ख़बर नहीं दे रहे, जबकि बज़ाहिर तो हमारा शुरू से ये मिरास रही है, हमारी जो है एक पहचान रही है कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की कोई ख़बर की तरदीद नहीं होती। ज़बरदस्त। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि हम सबको जो है फ़ख्र करना चाहिए कि वाकई, और दूसरी जिस तरह न्यूज़ होनी चाहिए, जिस तरह न्यूज़ को जाना चाहिए, और जो उसके तकाज़े हैं जो इंटरनेशनल, वो तमाम पीटीवी न्यूज़ और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में उन तमाम इक़दार को अडॉप्ट किया जाता है, उसको अपनाया जाता है, ताकि किसी किस्म की, क्योंकि हमारे पीछे एक लेगेसी है, एक पहचान है, और ये एक रेपुटेशन है कि पाकिस्तान और उसका हर मुलाजिम जो है वो ये समझता है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि किसी तरह, और ख़ासकर न्यूज़ के अंदर और करंट अफेयर्स के अंदर, कि वो उसकी पहचान जो है वो बरकरार रहे। और यही शनाख्त है कि अगर पाकिस्तान टेलीविज़न में कोई ख़बर आ जाए तो लो अर्ज़ में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हर तरफ जो है एकदम आंखें बंद करके लोग जो है उसको चलाना शुरू हुए कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में ख़बर आ गई है, बस जी ये इसको किसी मज़ीद तस्दीक करनी, और तमाम चैनल्स, इवन प्राइवेट चैनल उस लाइन को टो करते हैं। बिल्कुल सही। और यही वो बात है, एक पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स हो, न्यूज़ की बात की सुहेल खान साहब ने, एक बड़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ ख़बर पहुंचा देना या प्रोग्राम दिखा देना, नशर कर देना, ड्रामा डब किया हुआ है, कोई मूवी नशर कर देना, ये कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है। ज़िम्मेदारी ये है कि कौन सा मवाद देखा जाएगा, उसमें तरबियत का एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, देखने वाले जहनों पर क्या असर हो रहा है, और जो हमारे नाजरीन हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। पाकिस्तान टेलीविज़न का खासा रहा है कि हमारे प्रोग्राम्स इतने बुलंद पाया रहे, इतनी शोहरत मिली कि ना सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि इंटरनेशनली भी उनको फॉलो भी किया गया। अब पाकिस्तान टेलीविज़न के 58वीं सालगिरह पर हम देख रहे हैं कि हमारे इन हाउस प्रोडक्शंस कम हो गई हैं, ड्रामाज जो पीटीवी का खासा होता था, या फिर जैसे नीलाम घर प्रोग्राम था, एक कसौटी था, इस तरह के प्रोग्राम्स जो जहनों को चैलेंज करते थे। पीटीवी की इस लेगेसी को, जैसे सुहेल खान साहब ने भी कहा था, अब वो प्रोग्राम्स उसमें क्या ला रहे हैं अब नाजरीन के लिए? जी थैंक यू रिजवान। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं अपने हायर मैनेजमेंट के साथ आज यहाँ बैठा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी फ़नकार बिरादरी, जो हमारे आर्टिस्ट, जो हमारे सिंगर्स, जो हमारे साथ एंकर्स, जिन्होंने 64 से ये सफ़र हमारे साथ शुरू किया था, जो आज हम में नहीं हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और जो आज मौजूद हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे आपने 50-50 से इस्माइल तारा, कल वो इस पीटीवी का तारा थे, वो भी चले गए इस दुनिया से, तो हमारी बिरादरी वो जो जा रही है उनको मैं खराज तहसीन सबसे पहले तो पेश करना चाहूँगा।
اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ جی ہماری پروگرامنگ اور جیسے خاصا تھا، دیکھیں میں نے بھی 30 سال کا یہ سفر ہے. جب میں پروگرامز میں آیا تھا تو کرنٹ افیئر کا ایک ہی پروگرام ہوتا تھا 9 سے 10، ایک خبر نامہ ہوتا تھا اور 6 بجے انگلش نیوز شائستہ زید پڑھا کرتی تھی. بس سیرت سے یہ شروع ہوتا تھا، فرمان الہی پہ یہ ختم ہو جاتا تھا. اس میں اس وقت سونا چاندی، الف نون اور یہ ڈرامے سارے جتنے بھی تھے وہ چلتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جب نوسٹلجک ظاہر ہے کہ بندہ اس پرانی یادوں میں جب رہتا ہے تو اس کو پرانی جتنی بھی ہماری وہ ہیں یادیں، اس میں وہ خوبصورت لمحے جو ہیں نا وہ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں. لیکن ہم نے آگے بھی چلنا ہے، آگے جانا ہے. ابھی ہماری 65 to 75% یوتھ ہے اس ملک کی، تو ان کو پرانے ڈرامے نو ڈاؤٹ کہ اشفاق صاحب کے یا بانو آپا کے جو ڈرامے تھے وہ بہت خوبصورت ڈرامے تھے، لیکن ہم نے اس جنریشن کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ جنریشن اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے جو ہائر مینجمنٹ ملی ہے ان کا ویژن بھی یہ ہے کہ بھائی اس یوتھ کے لیے آپ نے اب کیا کرنا ہے. ہو گیا بہت آپ نے کر لیا اور ہم لوگ بھی اسی میں ہی رہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہم نے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو آج کے جو یوتھ ہے، آج کے جو بچے ہیں، وہ ایک ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ شارٹ سٹوری. ابھی دیکھیں جو ہے ہمارا جو یہ موبائل آ گئے اور یہ ہماری جو سوشل میڈیا ہے، اس میں آپ کو تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ میسج کنوے کرنا ہے. آپ دیکھیں ہم نے اس یوتھ کو انٹرٹین بھی کرنا ہے اور ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. بنیادی طور پر جو پولرائزیشن جو ملک میں جب آبادی ظاہر ہماری بڑھ گئی ہے، یوتھ بھی بڑھ گئی ہے، تو ان کو ایک پی ٹی وی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جس سے ہم نے ان کی ایجوکیشن بھی کرنی ہے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ. تو ہمیں اب ڈرامے کا جو معیار تھا اس وقت وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہمارے دور کا تھا، ہم اس کو پسند کرتے تھے. آج کی یوتھ شاید اتنے لمبے لمبے سین پسند نہیں کرتی. اشفاق صاحب کا مجھے یاد ہے کہ وہ جب ڈرامہ شروع ہوتا تھا تو یا بانو آپا کا، تو وہ سین 15-20 صفحوں کا ایک سین ہوتا تھا. تو اتنا لمبا آج کی یوتھ جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے شارٹ. اب دیکھیں اس میں اس ہائر مینجمنٹ میں خاص طور پر میڈم جو ہماری منسٹر ہیں انہوں نے بھی، سیکرٹری صاحبہ نے بھی، سہیل علی خان صاحب نے بھی، میڈم نے 3 پروگرام ہمیں خاص طور پر یوتھ کے لیے کہیں. ایک لمحے ہم نے کراچی لاہور سے سٹارٹ کر دیا ہے، بریلینٹ برین ہم کراچی سے وہ چل رہا ہے ہمارا، وہ وہاں سے ریکارڈ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو آپ نے بات کی ہماری 4 سیریل اس وقت، یہ جو پرسپشن تھی نا یہ اس مینجمنٹ میں چینج کر دیے کہ جی پی ٹی وی کچھ نہیں کر رہا. ان ہاؤس 85% پروڈکشن ان ہاؤس ہو رہی ہے. ہم لاہور سے ٹوٹے پتے، ہم پشاور سے آدھا چہرہ، ہم جو ہے وہاں سے 2 گھونٹ زندگی، کراچی سے بہت خوبصورت سیریل ہے ابھی ہم نے وہ کی ہے. اسی طریقے سے بچوں کے پروگرام بیداری ہے، یہ جو ہے بے شمار یعنی ہر سینٹر سے ایک پروگرام خوبصورت بچوں کا. یوتھ کے انڈر گراؤنڈ بینڈ ایک بہت خوبصورت پروگرام ہے. میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آج آپ 24 گھنٹے کے لیے پی ٹی وی ہوم لگائیں اور کل مجھ سے سوال کریں. یہ جو پرسیپشن ہے نا یہ جب تک آپ پی ٹی وی دیکھیں گے نہیں، یہ پہلے تھی کچھ عرصہ پہلے، ظاہر ہے جب نئے چینل آئے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. ایم ڈی صاحب سے جاننا چاہیں گے سر، بہت ساری سوالات آتے ہیں پی ٹی وی کے ڈرامہ کا ذکر کرتے ہیں ہم، جیسے ابھی ملک صاحب ذکر کر رہے تھے. پی ٹی وی کو دیکھنا یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ اپنے ویورز کو ایسا کیا پیش کر رہے ہیں، کیا ایسا ان کو دکھا رہے ہیں کہ وہ یہاں آئیں. ہم پی ٹی وی دیکھتے سب ہیں، ہر جگہ مانیٹر ہوتا ہے، ہماری ٹیریسٹریل ٹرانسمیشن ہر جگہ پہنچتی ہے، پی ٹی وی ہوم کی بھی، پی ٹی وی نیوز کی بھی. لیکن اب جو کرنٹ دور آ چکا ہے، ہم یہ کہیں جدت آ چکی ہے، پرائیویٹ چینل کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے، تو انٹیکٹ کرنے کے لیے پی ٹی وی میں اور کون سی ایسی چینجز ہیں جو فورس ہی کر رہے ہیں کہ وہ لازمی ہیں اور وہ آپ کے پلان کا حصہ ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں اگر ایک نہیں متعدد بار متعدد موقعوں پہ سرکاری میٹنگوں میں نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرین حضرات کے یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چینل دیکھ سکتے ہیں تو وہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہے. پاکستان ٹیلی ویژن تو یہ ایک بہت بڑی آج جو کہ ہم 1964 سے جن اقدار کو، جن سوشل ویلیوز کو لے کر چلے تھے اور اسی کو لے کے جا رہے ہیں اور آگے بھی جائیں گے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک پازیٹیو اور ایک مثبت انٹرٹینمنٹ دینا. اب اس کے اندر
ये भी तासुर गलत है, क्योंकि अगर हम जो मेरे पास फिगर्स और नंबर्स आते हैं, जो हमारी जो टेरेस्ट्रियल रीच है उसमें, जहाँ तक टेरेस्ट्रियल रीच से मुराद ये है कि आप एंटीना लगाएं और कहीं भी पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो देख सकते हैं, तो बेशुमार ऐसे पॉपुलेशन है जो देख रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे ये बताना चाहूँगा कि हमारा PTV बोलान भी टेरेस्ट्रियल हो गया है, जिसके लिए डायरेक्टर इंजीनियरिंग का शुक्रिया कि इन्होंने क्विक एफर्ट की। नेशनल जो है PTV नेशनल की जो चैनल है वो भी हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया है। और ये चैनल क्या है, ये चैनल में PTV बोलान जो है उसके अंदर पश्तो और बलूची ज़ुबानों की ट्रांसमिशन होती हैं, और नेशनल के अंदर हम पंजाबी और सिंधी की जो है ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब उसके अंदर हमने इंफोटेनमेंट का एलिमेंट भी बढ़ा रहे हैं, डायरेक्टर प्रोग्राम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बाकी जो मुतलका हज़रात हैं। तो पाकिस्तान टेलीविज़न की और उनके ड्रामों की रीच बहरहाल है, रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। उसके लिए एक बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई गई है, और उसके साथ जब हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म जो है जिसका सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी ड्रामे देखना चाहेंगे वो देख सकेंगे। तो बड़ी जिद्दत लेकर आई जा रही है। लोकल प्रोडक्शन जो है उन इलाकों की, क्योंकि लोग उस इलाकों में देखना चाहते हैं, और यही एक इंटरनेशनल ट्रेंड भी है प्रोडक्शन और एंटरटेनमेंट के हवाले से। तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन से भी हम राब्ते कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस, जिस तरह जो मिरास होती थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न हर इलाकाई प्रोडक्शन हाउसेस को प्रमोट करता था, उसका एक परसेंटेज होती थी उन प्रोडक्शन में, उसको रिवाइव कर रहे हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्टर। तो और इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न में ना सिर्फ जिद्दत आएगी बल्कि इसकी मज़ीद एक्सेप्टेबिलिटी भी माशरे में है, मज़ीद बढ़ेगी और उसका इजहार भी होगा इंशाल्लाह। आरिफ नूर साहब, जैसे आपसे हमने बात की थी कुछ देर पहले टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन के हवाले से, तो बताइएगा PTV स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है और लोग उसे राउंड द क्लॉक देखना चाहते हैं, तो इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम लग रहा है डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन के लिए। हम इस वक्त मरी से टेस्ट ट्रांसमिशन उसकी दे रहे हैं, और कालाशाह काकू, सकेसर और ठंडियानी में भी हम इसको डिजिटल ट्रांसमिटर प्रोसेस में उनकी इंस्टॉलेशन। इसके बाद हम एक सिस्टम को एवेलुएट करने के बाद इसको ऑप्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, और इसके ऑप्ट करने के बाद ये तमाम जो लोगों की डिमांड्स हैं कि PTV स्पोर्ट्स की स्पेशली डिमांड है कि इसको टेरेस्ट्रियल किया जाए। इस वक्त हम PTV न्यूज़ और PTV होम टेरेस्ट्रियली दिखा रहे हैं, लेकिन इन PTV स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। तो जब ये डिजिटल ट्रांसमिशन हम सिस्टम ऑप्ट कर लेंगे और डिजिटल ट्रांसमीटर लगा देंगे, तो नॉट ओनली PTV न्यूज़ बल्कि तमाम 9 चैनल जो हैं वो उस इलाके के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उसके अंदर आपके तमाम PTV ग्लोबल, PTV न्यूज़, PTV वर्ल्ड, PTV स्पोर्ट्स और टेलीस्कूल जितने चैनल्स हैं सारे के सारे आप उधर से एक ट्रांसमिशन के ज़रिए देख सकेंगे। और लोगों के ये जो देरीना मुतालबा PTV स्पोर्ट्स का एक्सक्लूसिवली है, ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसको हम मटीरियलाइज़ करेंगे। 58वीं सालगिरह पर हमारे नाज़रीन के लिए ये खुशखबरी है कि बहुत जल्द आप PTV स्पोर्ट्स पे टेरेस्ट्रियल पर बगैर केबल के या बगैर डिश एंटीना के आप देख सकेंगे, सिर्फ एंटीना पर आप देख सकेंगे। और मदिहा, एंटीना से मुझे याद आता है बचपन में जब TV देखते थे और ख़ासतौर पर ऐनक वाला जिन देखना होता था तो बाकायदा एंटीना ठीक करना पड़ता था, हवा की वजह से एंटीना हिल जाता था, फिर उसको ठीक करना होता था ताकि ट्रांसमिशन क्लियर आ जाए। बिल्कुल। और इस प्रोफेशनल गुफ्तगू के बीच पे मैं मैम से ज़रा पूछना चाहूँगी कि मैम, बीइंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड चेयरपर्सन PTV, आप बताइए नाजरीन को, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल, कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को और ऑफिस की जिम्मेदारियों को कैसे मैनेज करती हैं। वी वांट टू नो दैट। क्रिटिकल क्वेश्चन है जी। और इसकी बैलेंसिंग जो है वो बाकायदा एक आपको प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन ये कि पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा ये कहा है कि जब 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इज़ फीमेल, तो आप उनको घरों में नहीं बैठा सकते। अगर आप घरों में बैठाएंगे तो आपकी तरक्की 50% स्लो हो जाएगी। सो आप लाएं आगे उन्हें, और ये बैलेंसिंग जिस तरह ख़वातीन आएंगी उस तरह आप उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको भी हैंडल करना सीखेंगे, आप उनको एक्सेप्टेबिलिटी देंगे और वो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके साथ उसके बावजूद वो काम करेंगे। काम कराना ज़रूरी है।
गाइडेंस लेने के लिए सुबह 7 बजे भी मैम को फ़ोन करते हैं और रात को 2-2 बजे भी इनसे रब्ता होता है। जबरदस्त। झाड़ पड़ती है लेकिन गाइडेंस में मिलती अच्छा, है। लेकिन फिर मेरा ख्याल से कि उसी वजह से इम्प्रूवमेंट आती है और उसी से फिर बहुत पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर हम साई साहब से जानना चाहेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में ये बात हो रही थी कि चूँकि जो गेस्ट बैठे हैं जब तक उनके दरमियान तल्ख कलामी नहीं होगी, आर्गूमेंट नहीं होगा, प्रोग्राम की रेटिंग ऊपर नहीं जाएगी। पीटीवी के हवाले से पीटीवी के प्रोग्राम्स का खासा ये है कि उसमें तमाम पार्टीज़ का हो, चाहे वो ज़रूरी नहीं है पॉलिटिकल गुफ्तगू ही की हम बात कर रहे हों, तमाम शोबों की बात करता है पाकिस्तान टेलीविज़न, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से तमाम इश्यूज़ को टच करता है। तो इसके लिए साई साहब ये एंकर्स को जो ख़ास तलकीन की जाती है कि आपने सीरियस होकर बैठना है, खुशगवार माहौल में प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे सवाल आते हैं इस तरह के। कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो जिस तरह मैम ने कहा डांट वहाँ से शुरू होती है सर के, और उससे पहले ऊपर से मिनिस्टर साहबा से। तो ये एक जो सबसे अहम चीज़ है कि इस तरह की, जिस तरह मलक साहब ने कहा कि जो लीडरशिप है हमारी, चाहे एमडी साहब हैं, मैडम साहबा हैं या मिनिस्टर साहबा हैं, एक तो पीटीवी को बड़े ये सबसे जो अच्छे व्यूवर्स हैं ये तीनों हैं। तो सबसे पहले ये जो कम्बिनेशन है, जिस तरह आपने देखा कि ये जो हमारी लीडरशिप है इनकी तरफ से एक बड़ी वाज़ेह गाइडलाइंस हैं कि हमने करना क्या है। एक तो जिस तरह मैंने हिजान से बिल्कुल आउट रहना है। फिर जो हमारे इश्यूज़ हैं, डेली एमडी साहब के साथ हमारी एक मीटिंग होती है, डिस्कशन होती है कि इसको किस तरह हमने आगे लेके जाना है इश्यूज़ को। तो सबसे पहले जो एंकर्स की जो आपने बात की कि एंकर्स को हमने क्या बताना है, एंकर्स को सबसे पहले यही बताया जाता है कि इन इश्यूज़ हमने इश्यूज़ को कवर करना है। उसमें हमने इंडिविजुअल्स को या पर्सनालिटीज़ को या वो जो छोटी चीज़ें हैं उन पे फोकस नहीं करना। तो पीटीवी के एंकर्स भी अगर आपने देखा हो करंट अफेयर्स के ख़ास तौर पे, जिस तरह हमारी अपने अनवारुल हसन हैं और बहुत सारे इस तरह के नाम हैं जो कि बड़े अरसे से पीटीवी के साथ मुंसलिक हैं और इतनी बड़ी बड़ी उनको ऑफर्स थी लेकिन वो छोड़ के नहीं गए। और एक मिजाज पीटीवी का उनके अंदर रच बस गया क्योंकि उनका भी ये ख्याल है कि वो शायद लोगों को लड़ा नहीं सकते, क्योंकि वो यहाँ पे अखाड़े में नहीं बैठे हुए। जो सबसे अहम चीज़ है पीटीवी में कि आप अखाड़े में नहीं बैठे हो, आप एक एजुकेटेड जगह है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं जिसकी अपनी एक लेगेसी है और उस लेगेसी को आपने आगे लेके जाना। और आप जो है पब्लिक एट लार्ज के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आप वो खास जो 3-4 हज़ार मीटर लगे हुए हैं ना जिन जगहों पे, उस पे नहीं कि जो ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना या किसी दूसरे की बात को बर्दाश्त करना ये बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान टेलीविज़न यही सिखाना भी चाह रहा है और यही पैगाम भी है कि अगर आप किसी दूसरे की गुफ्तगू सुनते हैं तो उस गुफ्तगू को उसके साथ आप इख्तलाफ कीजिए और अच्छे अल्फाज में कीजिए। अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। और नाजरीन, ये खुशियों भरे लम्हात हम आपसे शेयर करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बहरोज सब्जवारी और आज पीटीवी की 98वीं यानी 58th बर्थडे है, एनिवर्सरी है। और जैसे कि 58 साल पीटीवी को हो गए और 56 साल मुझे पीटीवी से मुंसलिक हुए हो गए। और दुआओं की दरख्वास्त है कि पाकिस्तान इसी तरह फले फूले और पीटीवी भी इसी तरह फले फूले। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में पाकिस्तान टेलीविज़न की। इनफैक्ट बढ़िया ऐसा लग रहा है हमारी ही 58वीं सालगिरह है और हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 58वीं सालगिरह। और पाकिस्तान टेलीविज़न के मुलाजमीन हों, पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा हों, पाकिस्तान टेलीविज़न के नाज़रीन हों, तमाम टीम, क्योंकि ये चैनल पाकिस्तान का चैनल है, ये हम सब का चैनल है और हम सब के घरों में ये देखा जाता है। तो 58 बरस पाकिस्तान टेलीविज़न ने आज अपने मुकम्मल किए हैं, बहुत नशेब फराज देखे और हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न एक कदम आगे ही बढ़ा है। पूरी दुनिया के चैलेंजेस में जहां इसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हम आगे ही बढ़े हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आगे ही बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। मैडम, ये ख़ास मौका है और ख़ुशी का मौका भी है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आप क्या पैगाम देंगी उन तमाम लोगों को जो नाजरीन भी हैं, जो हमारे व्यूअर्स भी हैं और टीम का हिस्सा भी हैं।
हमारी तरफ से जी सबको बेहद मुबारकबाद। एक तो आप लोगों की मुख्तलिफ लोग जो इसके साथ मुंसलिक रहे हैं, जिन्होंने उनकी साल की काविशों की वजह से आज पीटीवी यहाँ पर है, उन सबको मुबारकबाद। आप सबको भी मुबारकबाद हमारी तरफ से, और इस दुआ के साथ कि ये फलता फूलता रहे और हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत जिस तरह सरकार की करता रहा है हमेशा, और करता रहा। हमारे लिए एक बड़ी प्राइड का एलिमेंट है पीटीवी, हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त? पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम नाजरीन, तमाम लाजमीन जो इस वक्त मौजूद हैं, वो तमाम आर्टिस्ट जो हमें इस नशियात में देख रहे हैं, और जो कि कभी इस इदारे से किसी हैसियत में भी मुंसलिक रहे, उन सबको इस पुरमसरत मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी 58वीं सालगिरह, और हम तो बार बार यही कहेंगे कि हमारी 58वीं सालगिरह, क्योंकि हम पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमें पहचान दी है और यही हमारी पहचान भी है। तो मदिहा, आज के इस प्रोग्राम की, इस नशरियात की, न सिर्फ हम आज के दिन की बात करें बल्कि जितनी भी नशरियात आप तक पहुँचती है और इस खूबसूरत प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए अगर हम शुक्रिया अदा ना करें तो ये ज़्यादती होगी। हमारा कैमरा डिपार्टमेंट है, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सबसे कलीदी किरदार अदा किया, फिर आईटी और लाइट डिपार्टमेंट, और ये जो खूबसूरत डिज़ाइन हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इस पर बैठकर हम प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर्स जो कि अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनका किरदार बहुत अहम है। निसार मेहदी और दाऊद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स का एक दफ़ा बहुत शुक्रिया कि आप ही के तवज्जुह से हम अपने नाज़रीन से गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारे जनरल मैनेजर आरिफ महमूद साहब, जिनकी कोशिशों काविशों के वजह से आज आप ये सब कुछ देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो चुका है। आप पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात देख रहे हैं हमारे 58वीं सालगिरह के मौके पर, और ये नशरियात यूं ही जारी रहेंगी। और पाकिस्तान टेलीविज़न का अपना खासा बरकरार रखते हुए आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स लेके आता रहेगा। मैडम शाहिरा शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर न्यूज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर इंजीनियरिंग, आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर करंट अफेयर्स, आपका बहुत शुक्रिया। और स्पेशली सुहेल अली खान साहब, MD-PTV, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और कीमती वक्त में से आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन के बहुत सारे ऐसे सवालात जो उनके जहन में थे, जो वो जानना चाहते थे कि ब्रेन्स बिहाइंड द स्क्रीन कैसे सोचते हैं, कैसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, और एक्चुअली उनके दिमाग में ऐसा क्या होता है कि वो तमाम प्रोग्राम्स, तमाम नशियात को डिज़ाइन करते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं। उम्मीद है कि क्यूरियोसिटी काफ़ी हद तक ख़त्म हुई होगी और आप लोग बहुत एंजॉय करे होंगे हमारे साथ इस दिन को। एंड पे यही कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।